refrigeration and air conditioning. So in this lecture I will solve the fifth numerical on vapor compression refrigeration cycle. I have discussed already 4 numericals. Okay, so this is basically a numerical based on undercooling and subcooling. So we will discuss a numerical in which there will be no subcooling, and after that we will do the subcooling or undercooling, and we will compare what the COP is coming, either the COP is increasing or decreasing with the subcooling. As you know, with the subcooling the COP must increase. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो subcooling या intercooling हम लोग subcooling या जो हमारा undercooling होती है वो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि there's a after the condenser the temperature of saturated liquid is decreased by some degree like 5 or 6 degree, then this will be a subcooling of 5 or 6 degree, and this 3 point will be falling in the subcooled region. Okay, so you will see that. So let us start with the question. अगर आप लोगों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो you can go to the previous lecture. I will put the link of the all previous lecture in this video. Okay, so all numerical that has been solved in the previous lecture, the link I will provide in below this video lecture. Okay, so let us start with this numerical. So this is the fifth numerical. First understand the numerical. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है the vapor compression refrigerator. कोई एक vapor compression refrigerator है जो कि R12 using R12 as refrigerant and liquid evaporates at evaporator temperature of 15 degree centigrade. तो आपको evaporator का यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड R12 आपको रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है, ठीक है. The temperature of this refrigerant at the delivery from the compressor is 15 degree centigrade. That means आपको जो 2 पॉइंट है, जो आपका कंप्रेसर का आउटलेट है, वहां पे जो आपका ये निकल रहा है 2 पॉइंट पे, that is at 15 degree centigrade. Okay, so when the vapor is condensed at 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आप कंडेंसेशन कर रहे हो, दैट मींस ये 2 पॉइंट जो है आपका सुपर हीटेड रीजन में रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, ठीक है. सो यू आर कंडेंसिंग द वेपर एट 10 degree centigrade. So the temperature of condenser is 10 degree centigrade. Find the coefficient of performance if there is no undercooling. That means पहले आपको क्या करना है, पहले आपको COP बतानी है जब हमने कोई भी अंडरकूलिंग नहीं करी है, ठीक है. उसके बाद दूसरा जो है आपका when the liquid is subcooled by 5 degree centigrade. When you subcool the liquid with 5 degree, that means अगर आप जो 3 पॉइंट की कंडीशन है वो 3 पे नहीं लेकर के, ठीक है, आप सबकूल रीजन में लेते हो, वी आर सबकूलिंग दिस बाय 5 डिग्री, देन हमें क्या करना है कि COP बतानी है कि COP पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है. तो उस केस में भी COP कैलकुलेट करनी है. उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक हीट दी हुई है, कहाँ पे देखिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सुपर हीटेड वेपर. दैट मींस 2 पॉइंट जो आपका होगा, 2 पॉइंट पे आपको सुपर हीटेड वेपर की जो स्पेसिफिक हीट है, द वैल्यू ऑफ CP इज गिवन, ठीक है. इसी तरीके से आपको जो सैचुरेटेड लिक्विड है, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड मतलब 3 पॉइंट, जो 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से अंदर जो आपका सबकूल रीजन है उसमें जो CP की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे दी हुई है, दैट इज 0.94. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ CP. For other properties, the other properties of refrigerant is as follows. यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं टेबल. तो टेबल में देखिए आपका जैसे दिया हुआ है कि 15 डिग्री -15 पे आपका एवोपरेटर वर्क कर रहा है और +10 पे आपका कंडेंसर वर्क कर रहा है. तो ये आपका दिया हुआ है. यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपके पास गिवन है, ठीक है. क्या क्या प्रॉपर्टीज गिवन है देख लेते हैं. इंथैल्पी गिवन है, इंथैल्पी का मतलब H दिया हुआ है, लिक्विड ऑफ इंथैल्पी है मतलब HF, और वेपर इंथैल्पी को जैसा आप जानते हैं Hg से डिनोट करते हैं. इसी तरीके से एंट्रोपी दी हुई है, the liquid entropy that is given by SF and the vapor entropy that is given by Sg. So these value has been given to the you in this question. Okay, so सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम केस 1 सॉल्व करेंगे. केस 1 व्हेन देयर इज नो अंडरकूलिंग. तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं केस 1 का, व्हेन देयर इज नो अंडरकूलिंग. दैट मींस वी विल कंसीडर द 3 पॉइंट एट द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं. तो डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है. द कंडीशन ऑफ 1 पॉइंट इज नॉट गिवन. In that case the condition of 1 point is not given, so we will take this 1 point in saturated in wet region. हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये हमारा 1 पॉइंट जो है वो वेट रीजन में है, चूंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है
कंडीशन 1 पॉइंट की नहीं दी है कि आपके इनलेट कंप्रेसर के इनलेट पे आपका क्या है, आइदर इट इज ड्राई सैचुरेटेड वेपर और व्हाटएवर इट इज, सो वी विल consider this to be in wet region. So we are considering this in wet region, but you have been given that the condensation is taking at 15 degree centigrade, which is at superheating temperature, because the condensation is done at 10 degree centigrade and कंप्रेसर के डिलीवरी पे जो निकल रहा है दैट इज एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो कंडेंसेशन हो रहा है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है। इसका मतलब 2 पॉइंट आपका श्योरली कहां पे होगा, इस 2 पॉइंट का जो टेम्परेचर है ये आपका 15 है, ठीक है, और यहाँ का जो आपका टेम्परेचर है जो कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ का आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 पॉइंट इससे श्योर हो जाता है कि 2 पॉइंट आपका कहां पे होगा, सुपर हीटेड रीजन में होगा, ठीक है। तो जो जो क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है पहले आप चेंज कर लेंगे इसको, जैसे T1 आपको दिया हुआ है टेम्परेचर T1, तो T1 को -15 वैल्यू दी हुई है तो 258 केल्विन हो गया। T2 आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो दैट मींस 288 केल्विन हो गया। T2 डैश आपको दिया हुआ है 10 डिग्री, ठीक है, तो 10 डिग्री का मतलब 283 केल्विन हो गया। ये सारी वैल्यूज आप लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है। और आपको यहाँ पे Cp की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे जो Cp की वैल्यू है दैट इज 0.64 और यहाँ पे जो Cp की वैल्यू है दैट इज 0.94। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सॉल्व करने के लिए जैसा आप सबको पता है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें देखिए 1 पॉइंट की इंथैल्पी चाहिए। वी हैव टू कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट आपका वेट रीजन में अगर हम मानते हैं तो वेट रीजन में 1 पॉइंट अगर है आपके पास तो इसका मतलब आपको सबसे पहले यहाँ की इंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए होगा, क्योंकि वेट रीजन में कोई भी पॉइंट फॉल करता है देन वी कैन नॉट कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ वेट रीजन विदाउट नोइंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ दिस पॉइंट 1। तो जैसा मैंने बताया था कोई भी आपका केस हो, चाहे ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना हो चाहे सुपर हीटिंग का टेम्परेचर निकालना हो, वी विल ऑलवेज यूज द सेम इक्वेशन, द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इक्वेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या कहता है कि S1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका S2 होगा, बिकॉज 1 to 2 इज एन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो पहले मैं S1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए 1 पॉइंट को हमने कहां पे माना है, यहाँ पे 1 पॉइंट हमारा है वेट रीजन में, तो वेट रीजन की जो एंट्रोपी होती है उसको हम लिखते हैं SF1 प्लस x1 इंटू SFG1। ओके, सो दिस वैल्यू जो SF1 देखिए 1 पॉइंट आपका किस पे है, 1 पॉइंट आपका है यहाँ पे -15 पे, ठीक है, और ये जो आपका टेम्परेचर दैट इज -15 और ये आपका 10 है, तो ये -15 है और ये आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, कंडेंसेशन का टेम्परेचर। तो ये सारी वैल्यू हम किस पे पढ़ेंगे, ये सारी वैल्यू आप किस पे पढ़ोगे, -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पढ़ोगे। तो -15 पे आप देख लेते हैं SF1 की वैल्यू कितनी है, -15 पे हम देखते हैं यहाँ पे SF1 की वैल्यू, देखिए -15 ये रहा और ये रहा SF की वैल्यू। तो SF की वैल्यू ये देख सकते हैं आपकी, ये है 0.0904, तो इसकी वैल्यू आप ले लें 0.0904, ठीक है, प्लस x1 तो हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस x1। SFG, तो देखिए SFG की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने जैसा बताया था आपको SFG को हम लिख सकते हैं SG माइनस SF लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं आगे 0.0904 प्लस x1 वी हैव टू कैलकुलेट एंड SG की वैल्यू देखिए, SG की वैल्यू किस पे, -15 पे SG की वैल्यू कितनी है 0.7051, ओके, माइनस आपका क्या हो जाएगा SF कितना है 0.9004, ओके। सो यू विल कैलकुलेट दिस, देन यू विल गेट फाइनल इक्वेशन एज, फाइनल इक्वेशन जो आपको यहाँ पे मिलेगी ये आ जाएगी आपकी 0.6147x1, ओके। सो यू विल गेट दिस एज 0.6147x1 हियर, एंड ये तो आपका है ही 0.0904। So let me call this as equation number 1, the value of S1. This is nothing but the value of S1. Okay, तो ये आपका S1 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आपको क्या करना है, S2 की वैल्यू लिखनी है। अब देखिए S2 की जो वैल्यू होगी, S2 आपका कहां पे है, सुपर हीटेड रीजन में है, ठीक है। तो सुपर हीटेड रीजन की जो एंट्रोपी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, सुपर हीटेड रीजन की जो एंट्रोपी होती है वो होगी हमारी S2 डैश, मतलब इस पॉइंट की एंट्रोपी प्लस CPLN क्या होता है, ये T2 अपॉन सुपर हीटिंग का जो टेम्परेचर है दैट मींस T2 अपॉन सैचुरेशन का जो टेम्परेचर है दैट मींस T2 डैश, ओके। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, अगर ये वैल्यू हम देखें S2, देखिए ये यहाँ पे S2 डैश की वैल्यू क्या होगी, देखिए S2 2 डैश पॉइंट आपका किस पे है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है, ये हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो कोई भी पॉइंट सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होता है उसकी एंट्रोपी को कैसे पढ़ते हैं, उसकी एंट्रोपी को SG से पढ़ते हैं। तो ये वैल्यू तो आपकी SG हो गई, ठीक है। ये क्या है आपका SG की वैल्यू है किस टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर आपका दिया हुआ है कितना 10 पे, तो 10 पे ये सारी वैल्यूज हम देखेंगे, तो +10 पे ये वैल्यूज देखेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप S2 आपका Sg की वैल्यू हो जाएगी +10 पे, +10 पे Sg की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.6921, सो दिस इज नथिंग बट 0.6921, ठीक है 6921, ओके। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करूं देखिए Cp, तो Cp आपको किसका Cp लेना है, 2 डैश का Cp लेना है, तो वो आपको दिया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है for the superheated vapor the value of Cp is 0.64, so you have to calculate this as 0.64 ln and T2 you have already given this T2 की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 288 दी हुई है, तो इसको आपको लेना है 288 केल्विन, ओके, and T2 dash is given as 283 Kelvin, so you have to take this as 283 Kelvin, okay, so you will get this, and finally if you will solve this equation, finally we are getting this as S2 as 0.7034, we are getting this, as you can see here we have solved this equation and we are getting this as 0.7034, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 0.7034, okay, so this will be the value of S2, okay, so S1 और S2 हमने दोनों निकाल लिए हैं, ठीक है। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, S1 इक्वल टू क्या करना है आपको S2 करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, S1 इक्वल टू S2 करना है, ठीक है। तो S1 इक्वल टू S2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ S1 इक्वल टू S2, ओके, तो S1 इक्वल टू S2 अगर आप करोगे तो S1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, देखिए S1 की वैल्यू कितनी है 0.0904 प्लस आपका क्या है 0.6147 x1, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा ये वैल्यू S2 कितनी है 0.7034, दिस इज द वैल्यू ऑफ S2, सो यू आर गेटिंग दिस एज 0.7034. So when you will solve this equation, you will get this x1 as, the value of x1 we are getting this as, you can see this x1 you will get as 0.997, तो यहाँ पे आप अगर ऐसे करके सॉल्व करते हो तो you will get this as 0.997, you will get this as 0.997, so you will get this as 0.997, ठीक है। तो अब हमारे पास x1 की वैल्यू आ चुकी है, तो वी कैन कैलकुलेट द इंथैल्पी एट पॉइंट 1, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं कैलकुलेट करके। देखिए 1 पॉइंट की इंथैल्पी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 पॉइंट की जो इंथैल्पी होगी, ठीक है, वो होगी हमारी H1 विल बी इक्वल टू HF1 प्लस x1 इंटू HFG1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जो आप पढ़ेंगे 1 पॉइंट जिस टेम्परेचर पे होगा, जो कि आपका है यहाँ पे -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारी वैल्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो HF1 देख लेते हैं, HF1 की वैल्यू कितनी, देखिए -15 पे HF की वैल्यू ले लीजिए 22.3, तो ये आपका हो जाएगा 22.3, ओके, प्लस x1 हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला था हमने x1, देखिए यहाँ पे 0.997 निकाला था, तो इसको ले लेना है आपको 0.997 ले लेना है, प्लस HFG, देखिए HFG यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट Hg माइनस HF, तो Hg 180.88 है और HF आपका 22.3 है, ठीक है। तो 180.88 ये हो जाएगा आपका 180.88 माइनस 22.3, ठीक है। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस HFG इज रिटन एज Hg माइनस HF, हमने इसको लिखा है और ये Hg की वैल्यू है और ये आपका HF की वैल्यू है, ठीक है। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, यू विल गेट दिस H1 एज, मैं देख लेता हूं थोड़ा सा इसमें 180.4, यू विल गेट दिस एज 180.4, you will get this as 180.4 kilojule per kg, okay. So similarly you can calculate the value of H2. अगर मैं H2 की बात करूं तो देखिए H2 जो 2 पॉइंट है आपका, 2 पॉइंट आपका कहां पे है, देखिए 2 पॉइंट आपका सुपर हीटेड रीजन में, तो सुपर हीटेड की जो इंथैल्पी होती है दैट इज नथिंग बट H2 डैश प्लस Cp डेल्टा T, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे H2 डैश, ये जो होगा हमारा H2 डैश प्लस Cp जो होगा, दिस इज given by T superheated minus T saturation Ts, okay, T saturation means the condensation temperature basically है। तो H2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए H2 हमारा जो 2 पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन सैचुरेटेड वेपर रीजन, तो सैचुरेटेड वेपर रीजन में हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसलिए इसकी जो इंथैल्पी पढ़ेंगे वो हमारी होगी Hg की वैल्यू होगी, Hg की वैल्यू किस पे होगी
इस टेम्परेचर पे, दैट मीन्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे Hg की वैल्यू देख लेते हैं। दिस इज 191.76, तो ये आपका हो जाएगा 191.76 वैल्यू ऑफ Hg। दिस इज Hg एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, H2 डैश प्लस Cp। Cp आपको देखिए यहाँ पे Cp लेना है, वो देखिए यहाँ पे आपको Cp क्या कौन सा लेना है, जो आपका टेम्परेचर दिया हुआ सुपर हीटेड का, दैट इज 0.64। तो 0.64 आपको लेनी है Cp की वैल्यू, तो 0.64 आपको लेनी है, 0.64। टी सुपर हीटेड का आपका टेम्परेचर पता है ऑलरेडी। टी सुपर हीटेड का हम देख लेते हैं कितना टेम्परेचर है सुपर हीटिंग का, इट इज 288 केल्विन, ठीक है। और जो आपका T2 डैश है वो आपका है 283 केल्विन, ठीक है। तो ये आपका है 288 केल्विन माइनस this is 283 Kelvin, okay। So when you will solve this, you will get this H2 as 194.96, so you will get this as 194.96, okay। So unit will be in kilojoule per kg। So by this way you can calculate the value of the enthalpy at point 2, okay। So 2 पॉइंट पे इस तरीके से आप निकाल सकते हो enthalpy की वैल्यू, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 3 पॉइंट। देखिए 3 पॉइंट यहाँ पे हमने सबकूलिंग नहीं करी, हम पहला केस सॉल्व कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग दिस केस, देयर इज नो अंडरकूलिंग। सो इन नो अंडरकूलिंग दिस 3 पॉइंट इज लाइंग, दिस इज द 3 डैश पॉइंट बेसिकली, ठीक है। हियर इट इज द 3 डैश पॉइंट। सो 3 डैश पॉइंट इज लाइंग इन द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो 3 डैश पॉइंट की इंथैल्पी की अगर मैं बात करूंगा, तो H3 डैश की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है, HF3 डैश है, मतलब जिस टेम्परेचर पे होगा, दैट मीन्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF3 की वैल्यू पढ़नी है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो HF की वैल्यू है वो है 45.4, ओके। सो यू विल गेट दिस एज 45.4, ओके, किलोजूल पर केजी। Similarly, you can write down the value of H4 as H3 because H3 is equal to क्या होता है आपका, H4 होता है। तो you will get also this as 45.4 kilojoule per kg, okay। So now we have finded out the all the values H1, we have finded out H2, H3 and H4. Now we can write down the COP. The COP will be nothing but the COP will be H1 minus H4 desired effect upon H2 minus H1, okay। So what will be H1? H1 we have calculated as 180.4 minus H4. H4 we have calculated as 45.4, okay। We are calculated this as 45.4 divided by H2 we have calculated 194.96 minus H1. H1 we have calculated as 180.4, okay। So finally we are getting this COP as 9.27. We are getting this as 9.27, okay। So we are getting this COP without undercooling, okay। So without undercooling we are getting the COP as 9.27, ठीक है। Now come to the second case। अब हम सेकेंड केस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड केस के लिए मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं पहले, ठीक है। तो सेकेंड केस में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको सॉल्व करके। देखिए सेकेंड केस में कह रहा है द लिक्विड इज सबकूल्ड बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर एक्सपेंशन बाय थ्रॉटलिंग, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो 3 पॉइंट है ये आपका 3 पे नहीं है, यहाँ पे आपका सबकूलिंग हो रहा है, दैट मीन्स 3 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। आपका जो 3 डैश पॉइंट है वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो सबकूलिंग है वो हमारी कितने डिग्री सेंटीग्रेड की है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड की सबकूलिंग है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है। ये देखिए सेकेंड जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन देयर इज अ अंडरकूलिंग ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सो द टीएस एंड पीएच डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखिए 1 से 2, तो 1 2 में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, वही पॉइंट है, ठीक है। आपका जो 3 डैश पॉइंट पहले था, अब आपका जो पॉइंट है दैट इज द 3, दैट मींस you have this 3 point is in subcooled region, ठीक है। ये आपका subcooled region में है, ठीक है। तो बाकी सारे पॉइंट्स वहीं पे हैं, बट द 3 पॉइंट लोकेशन ऑफ 3 पॉइंट हैज बीन चेंज, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट की लोकेशन चेंज हुई है, इसका मतलब 3 पॉइंट की इंथैल्पी भी चेंज हुई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो H1 की वैल्यू है वो वही रहेगी, H1 हमारा सेम रहेगा, ठीक है। H2 हमारा सेम रहेगा, H3 हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, दिस विल चेंज, H4 हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि H1, H2, H3, H4 आपको निकालना है। तो देखिए H1 की वैल्यू तो वही रहेगी जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी, ठीक है। बस आपका H3 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, H3 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जो आपका H3 होगा यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट
जो आपका HF3 डैश है, जो आपका HF3 डैश है, ठीक है, माइनस आपका क्या होगा Cp डेल्टा T। तो Cp आपका T सैचुरेशन माइनस ये होता है आपका T सबकूल्ड। ओके, सो आपका HF3 देखिए, HF3 क्या होगा, HF3 डैश क्या होगा, HF3 डैश होगा इस HF की वैल्यू एट दिस 3 डैश टेम्परेचर, ठीक है। तो 3 डैश टेम्परेचर आपका कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो HF की वैल्यू होगी वही आपका HF3 होगा। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, देख लेते हैं क्या टेम्परेचर क्या है हमारा। ये देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF की वैल्यू है 45.4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको लिख देते हैं 45.4, ओके, माइनस Cp। अब आपको Cp की वैल्यू कौन सी लेनी है, देखिए Cp की वैल्यू यहाँ पे ये वाली लेनी है, सब कूलिंग के या जो लिक्विड है आपका उसके लिए लेनी है, क्योंकि 3 पॉइंट पे आपका क्या निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है यहाँ पे। तो लिक्विड के लिए लेनी है Cp की वैल्यू। तो Cp की वैल्यू दी हुई है 0.94, सो वी विल टेक दिस वैल्यू एज 0.94, सो वी विल टेक दिस एज 0.94, ठीक है। मैं अभी इसको लिख देता हूँ T सैचुरेशन हमने माना हुआ है 3 पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है ये हमारा सॉरी ये 3 डैश पॉइंट, ठीक है, और जो T सबकूल का टेम्परेचर है दैट इज 3 पॉइंट, ओके। सो इसको हम लिख लेते हैं 45.4 माइनस 0.94, ओके। और ये T3 डैश आपके पास पता है, T3 डैश की जो वैल्यू है, T3 डैश की वैल्यू है हमारे पास, देखिए ये जो ओवरऑल डिफरेंस है इन दोनों का दैट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सीधा आप 5 ले लें, चाहे आप T3 और T3 डैश की वैल्यू ले लें, आएगा वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही। तो 5 डिग्री में भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, डिफरेंस में आप डिग्री में ले सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस में हम यहाँ पर डिग्री में ले लेते हैं, तो यू विल गेट दिस एज 0.94 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। आप चाहे तो वैल्यू डाल दें T3 डैश और T3 की केल्विन में, तो भी आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट दिस एज 40.7। तो यहाँ पे आपको 40.7 आ गई, किसकी वैल्यू, H3 की। बाकी सारी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो आप COP कैलकुलेट कर सकते हैं दोबारा से, जो COP होगी विद सब कूलिंग, ये हम COP विद सब कूलिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। विद सब कूलिंग जो COP आ रही है वो हमारी कितनी आ रही देख लेते हैं। ये होता है H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ओके। सो हमारा H1 हमारा दिया हुआ है 180, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था H1 की वैल्यू। H1 की जो वैल्यू थी दैट इज 180.4, ठीक है, और H2 की वैल्यू थी 194.96, ठीक है। तो 180.4 इसको ले लेना है आपको, 180.4, ओके, माइनस H4। देखिए H4 यहाँ पे क्या होगा, H4 आपका H3 के बराबर होता है, आपको सबको पता है। यहाँ पे देख सकते हो आप H4 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू H3। तो यहाँ पे H4 आपका यही होगा, तो H4 की वैल्यू होगी 40.7 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। H2 आपका है 194.96, ओके, माइनस H1 आपका है 180.4, ओके। सो फाइनली यू विल गेट द COP एज, you will get this COP as 9.59, okay। So you can see, or you can compare the COP. Earlier we have got the COP as 9.27 without subcooling, and after subcooling we are getting the COP as 9.59. So by the subcooling we can see that the COP has been इंक्रीज। सबकूलिंग से आपकी जो COP है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। In the next lecture we will discuss or we will start the multi-stage system. Thank you for listening. Best of luck.